Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here we see binary operation. F star or O is a function from G cross G into G. If the element AB, that is, if the ordered pair AB from G cross G is such that if the image of AB under star denoted by A star B, if this image again belong to G, then this function is called a binary operation. Here star is called a binary operation on G, or we can say G is closed under star, or closure property holds in G. Binary operation is a function which combines any two elements of a set and it gives again element of the same set. Now we read algebraic structure. A set upon which an operation holds is called an algebraic structure. For example, the set of natural number together with addition is an algebraic structure. That is for all integers AB where sum also belong to n. That is, if we take any two integers and if we add them, then the sum of two integers is again an integer. Hence addition is a binary operation on n, that is, n is closed with respect to addition, and this one represents algebraic structure. The set of natural number together with addition is an algebraic structure. Here we see two natural numbers. Their sum, which is 6, is again a natural number. It shows that addition is a binary operation on n, and this one represents algebraic structure. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n is closed under addition. मतलब ये है कि अगर हम कोई से दो नेचुरल नंबर ऐड करें तो इसका एडिशन ये नेचुरल नंबर हमें देगा, तो हम कह सकते हैं कि n is closed under addition, या closure property with respect to addition holds in the set of natural number. The set of integers is denoted by I or Z. यहाँ पे here we see the set of integers together with binary operation addition. Here the binary operation is subtraction. Here it is multiplication. These three are algebraic structure, because if we take any two integers, if we add them, their sum is again integer. So this one represents an algebraic structure where addition is a binary operation. If we take any two element, that is, if we take any two integers, if we find their difference, then the value will again belong to I, and this one represents algebraic structure. Now if we take any two integers, if we multiply them, their multiplication will also be a member of I, hence this one represents algebraic structure. Moreover, this one, here we have the set of integer and the binary operation division. If we take any two element from I, then if we divide one integer by another, then their value does not belong to I. It means I is not closed under division, and hence this one does not represent algebraic structure. Now here we have three properties: closure property, commutative property, associative property. इसके साथ हम इसको कह सकते हैं closure axiom या closure property, closure law, similarly commutative axiom, commutative law, and so on. So what is closure property? Closure property, if we take any two elements from a set, if as a result of star the value again belong to the given set, then we say that the set is closed with respect to star, or we can say closure property exists in the set G. If we commutative property means if we take any two elements from a set, if value of A star B and B star A are equal, then this star is called commutative binary operation, or this property is called commutative property. Associative property. What is associative property? Associative axiom क्या है? If we take any three element
such that if A star B star C is equal to A star B star C, then we say that G is closed with respect to associative property. That is, star is associative binary operation. Here, any set S together with an operation star or O, that is, a set S together with binary operation star, this one is called algebraic structure. For example, n plus is an algebraic structure. Here n means the set of natural numbers. If we take any two natural numbers, their sum will again be a natural number. Hence, this one represents algebraic structure, and this addition is a binary operation for the set of natural number. Here we see the set of integer z and the binary operation addition. This z means this is the set of integer. If we take any two elements from here, if we add them, then their sum will also belong to set z. Hence, this one represent algebraic structure. Group क्या है? Group G star. This G star is algebraic structure. G star is called a group if the following properties holds. किसी भी set में any set G together with a binary operation star is called a group if it possesses four properties. Closure property. The first property is closure property. This algebraic structure will be a group if there is a closure property. That is, if we have two elements from G, then A star B will also belong to G. Associative property. If we have three elements from G, then star will be associative binary operation. Existence of identity. In set G, we will have a member in G such that for all element of A, there will be an element E in G such that A star E will be equal to A, and it is also equal to E star A. This property is called existence of identity. G star को हम ग्रुप कहेंगे अगर इसमें हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसको किसी भी दूसरी एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन किया जाए तो ये हमें वापस वही एलिमेंट देगा. This element is called identity element and this property is called existence of identity. तो कोई भी algebraic structure वो ग्रुप होगा अगर उसमें आइडेंटिटी मेंबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. n plus, here n plus is algebraic structure. For 3 belong to n, we have 3 plus 0 is equal to 3, but 0 does not belong to n. अगर नेचुरल नंबर से हम कोई भी एलिमेंट ले ले, सपोज हमने 3 लिया, तो 3 के साथ हम कौन सा एलिमेंट ऐड कर ले ताकि ये हमें वापस 3 दे दे. जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर a के साथ e अमल कर ले तो इस अमल के नतीजे में हमें वापस a मिलता है, लिहाजा इसी e को हम आइडेंटिटी कहते हैं. तो अगर हम नेचुरल नंबर 3 ले तो 3 के साथ अगर हम 0 ऐड कर ले तो हमें 3 मिलता है. तो दिस 0 विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, लिहाजा ये वाला जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये ग्रुप नहीं है. दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट 0. सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, लेकिन 0 सेट n में नहीं है, लिहाजा ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप नहीं है. There is no identity element e is equal to 0 and the set of natural number, therefore n plus is not a group. अब यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और मल्टीप्लिकेशन है. तो अगर हम नेचुरल नंबर से कोई भी मेंबर ले ले तो नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 भी है और इसी 1 को हम e कह सकते हैं, क्योंकि अगर a और 1 आपस में हम इन दोनों का आपस में हम अमल कर ले
तो इस अमल के नतीजे में या इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस a मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 क्या है, 1 आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये क्या है, दिस n डॉट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो 1 है। If we combine 1 with any other natural number, we get that natural number again. Hence, this one is a multiplicative identity element for the set of natural number. Multiplicative identity element is equal to 1 exists in the set of natural number. अब यहाँ पे क्या है, existence of inverse. Existence of inverse किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, अगर उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी हो और फोर्थ प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो। दिस इज दी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर हम देखें यहाँ पे हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप को किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो और फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो। इनवर्स का मतलब है कि अगर जी से हम कोई से एलिमेंट ले लें तो इसी जी में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जब इन दोनों एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे इसी हालत में या इसी हालत में तो दोनों का जो रिजल्ट है वो हमें आइडेंटिटी उसको देना चाहिए। If the existence of inverse means if we have an element A in G, then we must have element B in G such that if we combine A and B either in this way or in this way, they must give the identity E. तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उसी सेट में या उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ए के साथ अगर बी एक्ट कर ले तो हमें ई मिलता है। तो बी क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए और इसको हम इस तरह लिखते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो अगर इसी बी की जगह अगर हम इसको पुट कर ले तो ये वाला जो इक्वेशन इसको हम इस तरह लिखेंगे a into a inverse is equal to e and which is also equal to a inverse into a। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होगा अगर उसमें ये चारों प्रॉपर्टीज हो। एनी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G star satisfying the above four properties is called a group। यहाँ पे n डॉट, यहाँ पे हमने लिखा है n डॉट। तो इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। इसी 1 को अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर ले तो ये हमें 2 देता है, लेकिन इसी 2 के लिए हमारे पास एक बड़ा 2 होना चाहिए और इन दोनों का जो वैल्यू है, रिजल्ट है, ये हमें 1 आना चाहिए। For 2 belong to n, we must have 1 over 2 such that the value of this product should be equal to 1 where this one is the identity। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर उसमें यही प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो तो हम कहेंगे कि इसमें इनवर्स मौजूद है। अब अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 2 ले तो 2 के लिए हमारे पास 1 over 2 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो इसमें नेचुरल नंबर में 2 भी है, नेचुरल नंबर में 1 भी है, लेकिन नेचुरल नंबर में ये 1 over 2 नहीं है। In the set of natural number, we do not have 1 over 2, hence their multiplicative inverse does not exist in this algebraic structure। इसी algebraic structure में multiplicative inverse exist नहीं कर रहे हैं। We do not have multiplicative inverse for any element of this set। इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इसके जो मेंबर्स है उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है, लिहाजा ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप।
यहाँ पे फेलोर क्या हो आ गया, हेयर दी थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस, सॉरी दी फोर्थ प्रॉपर्टी फेल्ड। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये है कि किसी भी सेट में ऐसे दो एलिमेंट होने चाहिए जिनके आपस में कम्बिनेशन से हमें आइडेंटिटी मिले। नेचुरल नंबर में अगर हमारे पास 2 है तो इसमें एक बार 2 भी होना चाहिए ताकि हमें आइडेंटिटी दे, लेकिन वो 2 इसमें नहीं है तो नेचुरल नंबर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिहाजा ये वाला algebraic structure क्या है, this algebraic structure is not a group, this one is not a group। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, G star is called abelian group if A star B is equal to B star A power all A B belong to G। फोर्थ प्रॉपर्टी किसी भी algebraic structure में अगर ये चारों प्रॉपर्टी हो तो वो ग्रुप कहलाता है। अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी उसमें हो, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इफ वी हैव एन algebraic structure such that if star is commutative binary operation then the group on account of the above four properties then which satisfy this fifth property also, that algebraic structure is called abelian group। किसी भी algebraic structure में अगर इन चारों प्रॉपर्टीज के साथ साथ अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हो तो फिर इसी algebraic structure को हम abelian group कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, z प्लस है, z डिवीजन है, z डॉट है। z क्या है, z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी z से अगर हम कोई सी इंटीजर ले तो z में हमारे पास 0 भी है, एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी, इन द सेट ऑफ इंटीजर द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। तब अगर इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर ले तो हमें a देता है। अगर हम इन पार्टिकुलर a, if we take a is equal to 3, तो अगर 3 हम सेट ऑफ इंटीजर से ले और 0 भी सेट ऑफ इंटीजर में है जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इन दोनों का वैल्यू या इन दोनों का वैल्यू 3 आता है। तो 3 क्या है, 3 is the additive identity in this algebraic structure। Existence of identity, that is additive identity element holds in Z। अब अगर Z में हम एक एलिमेंट A ले तो इसमें माइनस A भी होगा और दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हमें आइडेंटिटी देगा। तो इसका मतलब ये होगा इसी algebraic स्ट्रक्चर में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। 3 क्या है, इट इज एन इंटीजर और -3 ये भी एक इंटीजर है। इन दोनों को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी सेट में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होल्ड कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन Z। Obviously, closure property and associative laws of addition holds in Z and this one is group। इसको हम क्या कहते हैं, Z प्लस एक ग्रुप है। क्यों ये एक ग्रुप है, अगर हम Z से कोई सी दो इंटीजर ले, अगर इनको आपस में हम ऐड कर लें तो इसका वैल्यू हमें Z में मिलेगा, लिहाजा एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। और ये क्या है, Z और प्लस क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में। अगर Z से हम कोई सी 3 मेंबर ले ले और अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर ले तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लिहाजा सेकंड प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है, एसोसिएटिविटी। इसके अलावा अगर हम इसमें आइडेंटिटी चेक करना चाहे तो इसमें 0 मौजूद है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब Z में अगर हम एडिटिव इनवर्स चेक करना चाहे, Z के हर एक मेंबर के लिए इसी ही Z में एक ऐसा मेंबर है जब दोनों को हम मिलाते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये हो कि सेट ऑफ इंटीजर में हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। तो इनमें 4 प्रॉपर्टीज हमने साबित किए। तो इसका मतलब है कि Z प्लस एक ग्रुप है। इसके अलावा इसी Z से अगर हम कोई से 2 एलिमेंट ले लें
और अगर इस पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर ले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें होल्ड करता है, लिहाजा दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज एबिलियन ग्रुप। इसी तरह z डॉट, ये क्या है, दिस इज नॉट अ ग्रुप। अगर हम z से कोई से दो एलिमेंट ले ले, अगर हम एक एलिमेंट को, एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर पे डिवाइड कर ले तो इसका जो वैल्यू है वो z में हमें नहीं मिलेगा, लिहाजा डिवीजन क्या है, दिस डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z and this one does not represent algebraic structure, that is it is not a group। इसके अलावा इसी z के साथ अगर हम इसी मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लें तो ये एक ग्रुप है। If we take any two element from z, if we multiply, then we get the value of z again. The multiplication of any two integer is again an integer, hence multiplication is a binary operation। Associativity, if we take any three element from here, if we check the associative property with respect to multiplication, this property will hold in z, so associativity exists here। If we check the member of z with respect to multiplication, 1 will be the multiplicative identity, here e is equal to 1। 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसी z में, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। इसके अलावा z में हर एक, इफ वी टेक एनी इंटीजर्स फ्रॉम z, देन फॉर दैट इंटीजर वी डू नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो हियर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फेल्स। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड करता है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करता है। फॉर इंटीजर्स वी डू नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हेंस दिस वन डज नॉट रिप्रेजेंट अ ग्रुप। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फेल हो जाता है। तो इन तीनों को हमने डिस्कस किया और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास z प्लस, यहाँ पे हमने लिखा है z प्लस और यहाँ पे हमारे पास है एडिशन। तो z प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, w भी कहते हैं। w का मतलब है द सेट ऑफ होल नंबर। z प्लस को हम w भी कहते हैं और इसमें ये मेंबर है। अब अगर z प्लस के साथ अगर हम एडिशन चेक कर लें, इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट, इफ वी फाइंड द सम ऑफ एनी टू मेंबर्स फ्रॉम हियर, then the sum will again belong to this set, hence z plus is closed with respect to addition, that is closure property of addition holds in this set। एडिशन क्या है, दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब अगर इसी सेट से हम 3 मेंबर ले लें और एसोसिएटिविटी अगर हम चेक करना चाहें तो इसमें होल्ड करता है, लिहाजा सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करता है। इसके अलावा एडिशन जमा के लिहाज से इसी सेट में एडिटिव आइडेंटिटी e 0 है, दिस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोटेड बाय e। तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी भी है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। 2 और -2 जब आपस में हम मिलाते हैं तो ये हमें 0 देता है। लेकिन इसी सेट में किसी भी इंटीजर के लिए एडिटिव इनवर्स नहीं है, लिहाजा फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो रहा है। दी फोर्थ प्रॉपर्टी which is existence of additive inverse fails here, hence this algebraic structure is not a group। इसी सेट में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट e is equal to 0 मौजूद है, लेकिन इसी सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी मेंबर के लिए एडिटिव इनवर्स नहीं है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास माइनस में होगा, 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3।
तो इसी सेट के किसी भी मेंबर के लिए एडिटिव इनवर्स नहीं है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी फेल हो जाता है। लिहाजा ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z प्लस और W सेम सेट है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द सेट ऑफ होल नंबर टुगेदर विद एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ होल नंबर टुगेदर विद एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। तो ये ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फेल हो जाता है। Z डॉट, अब यहाँ पे है Z डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? Z डॉट इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? देख ले, ये वाला the set of integer together with binary operation multiplication is not a group. अगर हम if we take any two element from the set of integers, if we multiply the integers, we get again integer, hence the set of integer is closed with respect to multiplication. That is, multiplication is a closure property in the set of integer. या हम कह सकते हैं multiplication is a binary operation on the set of integer. इसके अलावा अगर हम Z से कोई से 3 एलिमेंट ले ले, तो associativity with respect to multiplication इसमें होल्ड करता है। Z में 1 क्या है? In the set of integer we have E is equal to 1, that is existence of multiplicative identity element which is E is equal to 1 exists here. अब यहाँ पे existence of inverse, if we take any element from Z, then we do not have multiplicative inverse. यहाँ पे देख ले, Z में हमारे पास E क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। अब अगर हम इंटीजर A ले, if we take इंटीजर A, तो इसी A के लिए हमारे पास एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए, इसी A के लिए हमारे पास एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए। जब इन दोनों को हम आपस में सिंप्लीफाई कर ले तो हमें आइडेंटिटी 1 देगा। ये 1 क्या है? दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो इसी तरह हम ज़रब दे सकते हैं, या इस तरह हम ज़रब दे सकते हैं। तो अब अगर हम देख ले इन द सेट ऑफ इंटीजर फॉर इंटीजर A, वी डू नॉट हैव 1 ओवर A। A के लिए हमारे पास 1 ओवर A होना चाहिए, ताकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें आइडेंटिटी दे। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में 1 ओवर A नहीं है, इसमें 1 ओवर A नहीं है, लिहाजा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फेल हो जाता है। अब अगर हम Z में 4 लें, तो 4 के लिए 1 ओवर 4 होना चाहिए, ताकि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिले। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में जो 4 है, इसी 4 के लिए हमारे पास 1 ओवर 4 नहीं है, 1 ओवर 4 इसमें नहीं है। लिहाजा यहाँ जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइज बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी, इट सेटिस्फाइज एसोसिएटिविटी, it satisfies existence of identity, but it does not satisfy existence of multiplicative inverse. Hence, this algebraic structure is not a group. Here we have an interesting question. ये वाला A star is a group. ये given है। A star क्या है? वो कहते हैं कि ये ग्रुप है। With, अब ये स्टार क्या है? दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? उन्होंने इसकी जो डिफिनीशन लिखी है, सेट S से अगर कोई सी एलिमेंट A और B ले ले, तो A और B का जो ऑपरेशन है वो इस तरह होगा, A प्लस B प्लस AB। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज अ ग्रुप। अब वो सेट S से अगर हम A ले और सेट S में E भी होगा, तो A और E का जो कॉम्बिनेशन है, देख ले, A स्टार E,
ए के साथ ए के साथ यहाँ पे आइडेंटिटी है. If we combine identity with any element of the group, we get that element again. क्योंकि स्टार है, दिस इज स्टार. तो इसी स्टार पे हमने क्या करना है, इसी फार्मूले को यूज करना है, इसी फार्मूले को. तो हम ए वापस लिखेंगे, ई भी वापस लिखेंगे, और इन दोनों का यहाँ पे ज़रब है, तो ए और ई का यहाँ पे प्रोडक्ट है, और इज इक्वल टू ए आपस में होगा. बाई कैंसलेशन लॉ होल्ड इन ग्रुप्स. तो ई हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जब ये दोनों कैंसिल होगा, ये वाला और ये वाला जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे 0 आएगा. अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, तो here the product of e and 1 plus a is equal to 0, which gives e is equal to 0. इसी ग्रुप में हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 है. 0 is the identity in this group. How to find inverse? अब इनवर्स किस तरह मालूम करेंगे? अगर हम सेट S से A ले और सेट S में अगर हम B डैश भी ले, तो A और B डैश का प्रोडक्ट हमें क्या होगा? The product of the value of A and B dash under star will be E. क्योंकि ये E इस वजह से आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्स हैं. यहाँ पे हमने लिखा है हाउ टू फाइंड इनवर्स. तो अगर A हमारे पास कोई सा एलिमेंट हो और अगर इसका इनवर्स B डैश हो, तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो E होगा. अब हम क्या करते हैं, A स्टार B डैश इक्वल टू E है, तो इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं. तो A वापस अपनी जगह पे, B डैश अपनी जगह पे, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये है. अब इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसी A को हम ट्रांसपोज करते हैं. अब हम मजीद क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं 1 प्लस ए पे, तो 1 प्लस ए इस माइनस ए के नीचे आएगा, और B डैश, दिस B डैश इज द